All the sages like Parvat Muni, Narada Dhomya, Vyasa, the incarnation of God, Bhradaswa, Bharadwaj and Parshuram and disciples, Vashishta, Indra, Pramada, Trita, Samada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika and Sudarshana were present. तो अभी क्या है भीष्मदेव अपना शरीर त्यागने पे है तो बिकॉज इज अ महाजन एंड ग्रेट डिवोटी सो जितने भी ये बड़े बड़े सेजेस सब वहाँ पे असेंबल हो जाते हैं बिकॉज उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है सब देखना चाहते हैं हाउ दिस ग्रेट डिवोटी डिपार्ट्स सो एवरीबॉडी वाज देयर सॉरी सो सभी लोग वहाँ पे होते हैं तो ये जितने भी लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पटपट में दिया है तो हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों ने वशिष्ठ मुनि का नहीं पढ़ा था तो वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे The great, the great celebrated sage among the Brahmanas, well known as the Brahma Rishi, Vashishta Dev. तो जो वशिष्ठ देव है ये कौन है ब्रह्म ऋषि हमारे ही इज अ प्रोमिनेंट फिगर इन बोथ द रामायण एंड महाभारत पीरियड तो हम लोगों ने रामायण में इनके बारे में पढ़ा था हमने कि विश्वामित्र मुनि के साथ इनका थोड़ा था महाभारत में भी इनकी बात आती है he celebrated the coronation ceremony of the personality of Godhead Shri Ramchandra रामचंद्र का जो कोरोनेशन हुआ था when he got the राज्य वशिष्ठ मुनि थे वहां पे he was present also on the battlefield of Kurukshetra देखो द्वापर त्रेता से द्वापर में भी थे so he could approach all the higher and lower planets and his name is also connected with the history of Hiranyakashipu there was a great tension between him and Vishwamitra who wanted his Kamadhenu wish fulfilling cow Vashishta Muni refused to spare his Kamadhenu and for this Vishwamitra killed his 100 sons अब इसकी क्या वही हमने पढ़ा था रामायण में किस तरह से विश्वामित्र मुनि उनकी वो गाय चाहते थे और फिर गाय ने किस तरह से उनकी पूरी सेना को मारा फिर उनके 100 पुत्रों को मारा So once he tried to commit suicide on account of Vishwamitra's torture, but all his attempts were unsuccessful. तो विश्वामित्र मुनि ने टॉयलेट किए सारे जितने भी ये सॉरी वशिष्ठ मुनि ने टॉयलेट किए थे तो एक बार he wanted to commit suicide also, but somehow it was unsuccessful. He jumped from a hill, but the stones on which he fell became a stack of cotton, and thus he was saved. कि वशिष्ठ मुनि एक बार क्या है ऊपर से नीचे कूदने लगे पत्थरों पे मगर वो क्या हो गया रूही का बन गया तो he was saved. He jumped into the ocean, but the waves washed him ashore. He jumped into the river, but the river also washed him ashore. Thus all his suicide attempts were unsuccessful. He is also one of the 7 rishis and husband of Arundhati, the famous star. तो ये बहुत महान ऋषि है हमारे Indra Pramada, another celebrated rishi hai. Trita, one of the 3 sons of Prajapati, Gautama. He was the third son and his other 2 brothers were known as Ikat and Gita. All the brothers were great sages and strict followers of the principles of religion. By dint of severe penances, they were promoted to Brahmalok. Once Trita Muni fell into a well. He was an organizing worker of many sacrifices. And as one of the great sages, he also come to show respect to Bhishma ji at his deathbed. He was one of the 7 sages in the Varuna Lok. He hailed from the western countries of the world. As such, most probably he belonged to the European countries. At that time, the whole world was under the one Vedic culture. Gritsa Mada, one of the sages of heavenly kingdom. He was a close friend of Indra, the king of heaven, and was as great as Brihaspati. He used to visit the royal assembly of Maharaj Yudhishthira, and he also visited the place where Bhishma Dev breathed his last. मतलब यहाँ भीष्म देव प्राण त्यागेंगे वहाँ पे भी आए थे. Sometime he explained the glories of Lord Shiva before Maharaj Yudhishthira. He was the son of Vidha Havya, and he resembled in feature the body of Indra. Sometime the enemies of Indra mistook him to be Indra and arrested him. तो ये जो क्या इंद्र से बड़े रिसेंबल करते थे कई बार क्या जो दुश्मन होते थे वो धोखे से इनको पकड़ के ले जाते थे so he was a great scholar of Rigved and thus he was highly respected by the Brahmana community he lived a life of celibacy and was powerful in every respect Asita इनका नाम भगवत गीता में भी आता है असिता देवला नारद ऐसे बोला जाता है जब अर्जुन बताते हैं कि इन्होंने भी आपको सुप्रीम माना है तो फिर मैं भी मानूंगा तो इसी फॉलो करते हैं इनका नाम भगवत गीता में भी आया है तो कहते हैं there was a king of the same name but here in the Asita mentioned is the Asita Devala ऋषि असित नाम के एक राजा भी मगर ये जो असित हैं ये कौन है ऋषि हैं पावरफुल सेज हैं अपने समय के he explained to his father
15 lakh verses from the Mahabharata. He was one of the members of the snake sacrifice of Maharaj Janamejaya. He was also present during the coronation ceremony of Maharaj Yudhishthira along with other great rishi. He also gave Maharaj Yudhishthira instruction while he was on the Anjana hill. He was also one of the devotee of Lord Shiva. Kakshivan, one of the son of Gautama Muni and the father of great sage Chanda Koshikar. He was one of the member of parliament of Maharaj Yudhishthira. अब इतने सारे नाम आपको याद तो नहीं रहेंगे, मगर फिर भी सुनिए, देखिए जितना आप ध्यान में रख सके, ठीक है. So Atri Muni was a great Brahmana sage and was one of the mental sons of Brahmaji. कि ब्रह्मा जी के मानसिक मन से उत्पन्न हुए अत्रि मुनि. ब्रह्मा जी so powerful that simply by thinking of a son he can have it. तो ब्रह्मा जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ हमारे जैसा सिस्टम नहीं चाहिए, सिर्फ चिंतन किया और पुत्र प्राप्त हो गया. तो ये मन से इनको उत्पन्न हुए अत्रि. These sons are known as मानस पुत्र. जैसे मानसी गंगा हमारी है वृंदावन में जो मन से उत्पन्न है, उसी प्रकार से अत्रि है मानस पुत्र. Out of 7 manas putra of Brahma ji and out of the 7 great Brahmana sages, Atri was one. In his family, the great Prachetas were also born. Atri Muni had 2 Kshatriya sons who became kings. King Arthama is one of them. He is counted as one of the 21 Prajapati. His wife's name was Anasuya and he helped Maharaj Parikshit in his great sacrifices. Kaushika, one of the permanent rishi members in the royal assembly of Maharaj Yudhishthira. He sometime met Lord Krishna. There are several other sages of the same name. Sudarshana, this wheel, which is accepted by the personality of Godhead Vishnu or Krishna as his personal weapon, is the most powerful weapon, greater than the Brahmastra or similar other disastrous weapon. तो ये सुदर्शन किसकी बात हो रही है? जो भगवान का खुद का सुदर्शन चक्र है. So it is the most powerful weapon than any other. In some of the Vedic literature, it is said that Agnidev, the fire god, presented this weapon to Lord Krishna, but actually this weapon is eternally carried by Lord. कई लोग कहते हैं कि अग्निदेव ने जो भगवान को दिया था, but भगवान इसको eternally carry करते हैं. So Agnidev presented this weapon to Krishna in the same way that Rukmani was given to Maharaj Rukma to the Lord. The Lord accepts such presentation from his devotees, even though such presentation are eternally his property. जैसे अभी हम भी भगवान को भोग लगाते हैं, पर है तो सारी उन्हीं की property, but still he accepted from his devotees. Like that. ठीक है. So there is an elaborate description of this weapon in the Adi Parva of Mahabharata. Lord Shri Krishna used this weapon to kill Shishupal, a rival of the Lord. He also killed Shalva by this weapon, and sometime he wanted his friend Arjuna to use it to kill his enemies. Mahabharata Virat Parva 56.3. तो ये हमारा इन सब के बारे में था. जो यहाँ पे भीष्म पितामह जहाँ पे अभी तीरों की छैया में है, जितने भी लोग आए थे ये उनके बारे में इंट्रोडक्शन था. So now we'll move ahead. अन्य चामुनयो ब्रह्मा ब्रह्मदातदयो मला शिष्य उपेत आजगमो कश्यपांक अंगिरा शदया. क्या बोला है? Many others like Sukhdev Goswami and other purified souls, Kashyapa and Angadish others, all accompanied by their respective disciples arrived there. Sukhdev Goswami ji भी आए, बाकी purified souls, Kashyapa, कश्यप मुनि, अंगिरसा, अदर्स और भी जो शिष्य थे उनके वो सारे लोग वहां पे प्रस्तुत हुए. इनके बारे में बताया है. सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरता, the famous son and disciple of Srila Vyasadeva, who taught him first Mahabharata, then Srimad Bhagavatam. तो अभी जो भागवतम है सुखदेव गोस्वामी ही इसका वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, सॉरी सूत गोस्वामी कर रहे हैं. तो ये पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने इनको सुनाई परीक्षित महाराज जी को. तो इन्होंने व्यासदेव जी से महाभारत और भागवतम सीखा. सुखदेव गोस्वामी recited 14 lakh verses of Mahabharata in the councils of Gandharva, Yakshas and Rakshasas. He recited Srimad Bhagavatam for the first time in the presence of Maharaj Parikshit. He thoroughly studied all the Vedic literature from his great father. तो उन्होंने अपने पिताजी सारे शास्त्र बड़े thoroughly पढ़े हैं. Thus he was a completely purified soul by dint of his extensive knowledge in the principles of religion. He is a purified soul because he knows all the religious principles. He had all the knowledge. From Mahabharata Sabha Parva, it is understood that he was also present in the royal assembly of Maharaj Yudhishthira and at the fasting of Maharaj Parikshit. As a bona fide disciple of Srila Vyasadeva, he inquired from his father very extensively about religious principles and spiritual values. तो ये जो एक पॉइंट है ये काफी अच्छा है. यहाँ पे क्या बोला है?
और जैसे महाभारत से यहाँ पर एक समझ में आता है कि he was also present in the royal assembly of Maharaj Yudhishthir and at the fasting of Maharaj Parikshit. As a bona fide disciple of Vyasa, he inquired from his father very extensively about religious principles and spiritual values. And his great father also satisfied him by teaching him the yoga system by which one can attain the spiritual kingdom, the difference between fruitive work, empirical knowledge, the ways and means of attaining spiritual realization, the four ashramas, quite long. मतलब ये है कि इनके पिताजी ने इनको सारा ज्ञान बहुत थॉरली मतलब काफी डीपली सारा बताया, चाहे वो 4 आश्रम के बारे में हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो। एक्चुअली उन्होंने इंक्वायरी भी तो की। सबसे पहले क्या आती है? परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन सेवा, तो प्रश्न होने चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी के वैसे प्रश्न रहे होंगे तो व्यास देव जी ने इतना डिटेल बताया। तो कहते हैं द क्वालिटी ऑफ द इंक्वायरी रिप्रेजेंट्स योर इंटेलिजेंस, रिप्रेजेंट्स हाउ मच द सिंसियर सीकर यू आर। ठीक है, तो हमारा जो इंक्वायरी है वो काफी सिंसियर होना चाहिए एंड दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर अस इन मैनी वेज। तो हमें वो हेल्प भी करना चाहिए। तो ऐसा हमारा प्रश्न होना चाहिए जो हमारे गुरुजन हैं। ये नहीं कि हम पूछे गुरु जी मेरी नौकरी कैसे लगेगी, गुरु जी मुझे शादी करनी थी कब होगी बताइए जरा, गुरु जी अच्छा ये कब होगा। जब भी हम किसी एक ग्रेट सेंट या एक महान आत्मा से मिलते हैं तो हमें अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कि हम कैसे भक्ति में प्रगति करें उसके बारे में हमें पूछना चाहिए। दिस इज ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उस और जैसा हमारा प्रश्न होता है, जैसे मैंने बोला जो वैष्णव गण है, आचार्य गण है, उनका हृदय कमल के समान है। कमल कैसा होता है? जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो खिलना शुरू होता है। उसी प्रकार से एक वैष्णव के हृदय में बहुत ज्ञान है, पूरी कृष्ण कथा भरी है। अब आप कितना फायदा लेना चाहते हो उस वैष्णव का, ये आपके प्रश्नों पे निर्भर करेगा। अब कोई संत आ जाए आपके घर में तो आप उनको बस हालचाल पूछो और चलते बने, तो ऐसा कर दिया तो आप फायदा नहीं ले पाओगे उस संत का। कोई भी संत आते हैं, संग मिलता है वैष्णवों का, तो हमें प्रयास करना है पूछने कि मैं इस जीवन का सुधार कैसे कर सकूं या अपनी भक्ति में वृद्धि किस तरह से कर सकूं। ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। जब सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में जो ऋषिगण इकट्ठे हुए थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछे, उनके प्रश्न कैसे थे? जो ऋषिगणों को तो बड़ा ज्ञान है, मगर उनके प्रश्न कैसे थे? उनके प्रश्न इस प्रकार से थे जो सभी जीवात्माएं, जो जनरल लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल है, उनको भी उसका फायदा हो। और सूत गोस्वामी ने अप्रिशिएट किया कि जितने भी सवाल हैं जो भी भगवान से रिलेटेड है या अपने जीवन में सुधार के लिए पूछे जाते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। तो ऐसे हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी शिष्य बने व्यासदेव जी के, उन्हीं के पिताजी। उनसे उन्होंने क्या नहीं सीखा? सारे चाहे जो हमारे जितना भी ज्ञान है स्पिरिचुअल, जैसे कर्म कांड क्या है, एम्पिरिक नॉलेज क्या है, या कैसे अध्यात्म हम या आत्म साक्षात्कार के तत्व कैसे जले, जो 4 जो हमारे आश्रम है, जैसे हमारा गृहस्थ जीवन है, संन्यास है या वानप्रस्थ है, तो उसको हम किस तरह से आगे बढ़े उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से भगवान को हम देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बड़े बोनाफाइड कैंडिडेट बने कि कहते हैं सही जो कैंडिडेट होता है ज्ञान अर्जित करने का। सो द कंसिडरेशन ऑफ द 5 एलिमेंट कि ये जो 5 हमारी जो 5 भूत से हमारा शरीर बना है, उनके बारे में कि एक कॉन्शियसनेस ऑफ मटेरियल नेचर के भौतिक जगत में जो एक व्यक्ति होता है उसकी चेतना कैसी होती है, जीवात्मा क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है शरीर के, कि किस प्रकार से 3 गुण प्रभावी होते हैं और किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। Sometime he went to the sun planet with the permission of his father and Narad ji. कई बार तो सूर्य ग्रह पे भी जाते थे सुखदेव गोस्वामी। सो उनके इस ट्रेवल का डिस्क्रिप्शन शांति पर्व महाभारत में आता है। At last he attained the transcendental realm. He is known by different names like Aranya, Aranishta, Vyasaki and Vyasatmaja. तो सूत गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी थे अंत में वो अपना डेस्टिनेशन अटेन करता है तो उनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे एक नाम अरण्य है, ये अनिश्चितता है, ये वेशकी या व्यासत मजा, तो ऐसे कई नाम हैं सुखदेव गोस्वामी जी के। तो उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो गुरुजन हमारे पहले तो पिता ही ज्ञान देता था, वही गुरु होता था शिष्य के लिए, फिर अब बच्चे के लिए। मगर आजकल के जो पिताजी हैं वो खुद ही ज्ञान में नहीं है,
अपराध नहीं है किसी के प्रति। पर ज्ञान का मतलब सिर्फ भौतिक ज्ञान नहीं होता कि रोटी कपड़ा मकान या कैसे भौतिक दृष्टि से जिया जाए। सही ज्ञान आध्यात्मिक है जो आपकी जीवात्मा को बचा सके। आज सुबह जब मैं जप कर रही थी, आई वोक अप, मैं थोड़ा जल्दी उठी, खैर रोज ही उठी जाती वैसे भगवान की कृपा से। तो जब जप कर रही थी तो अचानक से 3 बजे तो 3:30 हुए तो एक माताजी को कॉल करना था, जप के लिए उठाना था। तो कॉल किया तो थोड़ा व्हाट्सएप थोड़ा एक मैसेज देखा तो एक माताजी का मैसेज आया था कि एक तरह से हमारे एक बड़े वरिष्ठ भक्त हैं जो नरसिंह देव की पुजारी हैं मायापुर में। तो हमारे मतलब ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी काफ़ी समय से मतलब हम ब्रह्मचारी हैं। 2 भाई जुड़वा हैं तो वहाँ सेवा करते हैं। अभी तो उनका एज हो रहा है काफ़ी। तो पता चला उनका कोरोना की वज़ह से तबीयत बहुत खराब, पता नहीं उन्होंने शरीर छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा, मुझे कोई पक्की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। मगर उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो एक चीज़ रियलाइज़ेशन आई कि समय पता नहीं कब क्या हो, मतलब और ही जीवन की बाकी चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं कि जैसे कि किसी ने मुझे क्या कह दिया, क्या हो गया। अभी हम लोग अपने सामने ही देख रहे हैं कि कोरोना की वज़ह से जो दिल्ली तो एक तरह का नर्क ही बन गया है। आए दिन मौतें हो रही हैं लोगों की। हर जगह ही लगभग सारी सिचुएशन बहुत खराब है। मगर फिर भी जीवात्मा को अकल नहीं आ रही है कि अभी तो मैं कम से कम भगवान का नाम जप करूँ, इसका फ़ायदा उठाऊँ। मेरे ही गुरु भाइयों में एक के घर में 3 मौतें एक साथ हुई कोरोना की वज़ह से। भाई मर गया, माँ-बाप मर गए, किसी के पेरेंट्स मर रहे हैं। तो वी डोंट नो हमारे कई रिश्तेदार जा रहे हैं, कई क्लोज़ वन, डियर वन्स हमारे आस-पास के जा रहे हैं। तो अभी एक ये अच्छा समय है कि देखिए पहली बात तो ये घर पे रहिए, कहीं जाना नहीं है, सेफ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन अगर कर सकें, भागवतम श्रवण कर सकें, भगवत गीता पढ़ सकें, हरिनाम जप कर सकें और जप सिर्फ़ अपने लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए भी करो, जो अभी ये क्या नाम है, ये मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। हमें नहीं पता हम में से भी किसी की स्थिति ऐसे हो सकती है। तो प्लीज़ प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीरियस बनिए अपने भजन में। ये नहीं कि किसी से दुश्मनी लेके बैठे रहें और टीवी देखते रहें, बोलें कि अब तो लॉकडाउन है कहीं जाना नहीं तो चलो मज़े से बैठ के टीवी देखते हैं, गप्पे मारें लोगों से। नहीं, समय की स्थिति को समझिए कि हमें नहीं पता समय कितना है हमारे पास और लाइफ़ बहुत अनसर्टेन है। तो प्लीज़ थोड़े से सीरियस हो जाइए और जो भजन है, जैसे यहाँ मैंने बोला कि हमें संघ का फ़ायदा लेना है, ये नहीं कि हम ढीले पड़ जाएँ। आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग चाहे 16 माला कर रहे हैं, या 2 माला कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, उसको हृदयपूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक जप कीजिए और प्रार्थना कीजिए भगवान से कि शांति पूरे विश्व में आए। तो जितनी भी आपके आस-पास भी जो जीवात्माएँ हैं, उन्हें भी प्लीज़ भक्ति में लगाने का प्रयास करो, क्योंकि एक ही तरीका है बचने का और वो हरि नाम है। ना तो आपका टीवी आपको बचाएगा, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके माता-पिता, कोई हमारा साथ नहीं देता। अगर कोई हमें बचा सकता है, तो केवल भगवान है, कोई किसी का नहीं बनता। इट्स ओनली लॉर्ड हू कैन प्रोटेक्ट अस। तो कृपा करके प्लीज़ हरि नाम की शरण लीजिए और अगर जो भक्त पहले से जप कर रहे हैं थोड़े, तो प्रयास कीजिए कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स कीजिए कि भले के लिए, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी और अपने परिवारजनों को भी जोड़िए, ताकि वो इस मुश्किल समय में हमें नहीं पता अभी तो हम लोग घर पे बैठे बोले हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीनेशन हो गया, बट हमें नहीं पता हमारे परिवार में कोई किसी मुसीबत में हो। तो प्लीज़ ये जो मैसेज है भागवतम भगवद गीता का आप सुनते हैं, बाकियों को भी सुनाइए और बोलिए कि हरि नाम। इस समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज़रूर कीजिए। आप नहीं करें तो कम से कम 1 माला करना ज़रूर चालू करो, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है इस समय। हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सावधान होके सीरियस लीजिए, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ संसार में नर्क बन ही रहा है ये, तो बहुत बुरी हालत हो रही है, तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली, ठीक है? तो सीरियसली जप कीजिए, 1 माला कम से कम, जो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, कम से कम 1 माला कीजिए और जो कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़े एक्स्ट्रा राउंड्स करने का जो भी फ्री समय मिल रहा है, थोड़ा जप कीजिए ताकि थोड़ी शांति विश्व में आ सके। क्योंकि एक संकीर्तन यज्ञ है जो विश्व में शांति ला सकता है और कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा ये रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ करिए। तो आगे अब जैसे यहाँ पे कश्यप मुनि की बात आ रही है, ये भी भीष्म पितामह की हम जैसे देख रहे हैं कि वो तीर की शैया पे शरीर त्यागने वाले हैं। अब हमें तो ये नहीं पता अगर कोरोना से कोई मरेगा, तो किसी से मिल भी पाएगा कि नहीं अंत समय में।
नहीं पता, बेहतर है कि हम अपनी तैयारी खुद ही करें, तो प्लीज बी सीरियस। सो जो कश्यप हैं ये प्रजापतियों में से एक हैं, मारीची के पुत्र हैं और प्रजापति दक्ष के फादर इन लॉ है, ससुर जी हैं, सॉरी सन इन लॉ है, मतलब उनके दामाद हुए। तो ये किनके ही इज द फादर ऑफ जो गरुड़ है हमारे, जो गरुड़ भगवान के वाहक हैं, उनके पुत्र हैं। हु वाज गिवन एलिफेंट एंड टोटोटॉयज एज ईटेबल्स। सो ही मैरिड 13 डॉटर ऑफ प्रजापति दक्ष। तो इन्होंने प्रजापति जो दक्ष थे उनकी 13 पुत्रियों से विवाह किया। इनकी जो मेन जो पुत्रियां हैं तो दो मानी जाती हैं, वो कौन है, अदिति और दीति। इनके बारे में हमें पता होगा। आगे जो बाकी की हैं वो धनु, कष्टा, अरिष्टा, सुरेशा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, तामरा, सुरभि, शर्मा एंड तिमी। और इनके कई बच्चे हुए। इनके जो अदिति से पुत्र हुए वो देव बने, देवगण। और जो दीति से पुत्र हुए वो कौन थे, असुर बने। ठीक है। सो पहली जो पत्नी थी उनकी अदिति, अदिति जो सबका भला करती है, सबको जोड़ के रखती है। उनके 12 पुत्र हुए जिनको आदित्यास कहा जाता है, और वो सभी हमारे कौन बने, देवगण बने। उनमें से जो एक पुत्र वो वामन देव बने। वामन देव के बारे में कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। तो वामन देव अदिति के ही पुत्र हैं। और जो ग्रेट से कश्यप हैं वो अर्जुन के जन्म के समय भी प्रस्तुत थे। He received a presentation of whole world from Parshuram. Later on, he asked Parshuram to go out of the world. His another name is Arista Nemi. इनका एक और नाम है अरिस्ता नेमी। He lives on the northern side of the universe. तो ये जो यूनिवर्स है उसके उत्तर दिशा की ओर रहते हैं। और कश्यप हमारे सप्तऋषियों में भी हैं। जैसे हमारा जो, जैसे मेरा गोत्र कश्यप है, आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी कश्यप ही हो। सो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट दैट इज देयर कि मतलब उनके लेने जो है सप्तऋषि में माने जाते हैं हमारे कश्यप। आगे अंगिराशा है जो उस समय प्रस्तुत है। ये किनके पुत्र हैं, अंगिरा, किंग अंगिरा, महर्षि अंगिरा के पुत्र हुए, जो बृहस्पति के नाम से जाने जाते हैं। तो बृहस्पति देवताओं के पुरोहित, प्रीस्ट हैं, और उनके गुरुजन भी हैं। तो बृहस्पति को बहुत ज्ञान है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य वॉज हिज पार्शियल इनकारनेशन। जो द्रोणाचार्य हैं वो जो बृहस्पति है उन्हीं की अवतार, उन्हीं का इनकारनेशन है, पार्शियल। तो शुक्राचार्य वाज, जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु बने, और बृहस्पति हमारे एंड जैसे शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बने तो उन्हें बृहस्पति को चैलेंज किया। हिज सन इज कच्छा, जो इनके बृहस्पति के पुत्र हैं वो कच्छा है। एंड ही डिलीवर्ड द हिज फर्स्ट वेपन फर्स्ट टू भरद्वाज मुनि। तो बृहस्पति हमारे देवगणों के गुरु हैं। He begot 6 sons like the fire god by his wife Chandramasi, one of the reputed stars. तो इनके जो सन है वो बृहस्पति के पुत्र हैं। He could travel in space and therefore he could present himself even in the planet of Brahmalok and Indralok. तो बृहस्पति कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। He advised the king of heaven Indra about conquering the demons. तो एक बार क्या हुआ था, तो ये जो इंद्र लोग हैं तो उनको हमेशा क्या गाइड करते रहते कि कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है। तो उस हिसाब से बृहस्पति जो गुरु का यही कार्य है। तो once he cursed Indra, who thus had become a hog on the earth and was unwilling to return to heaven. तो एक बार इंद्र ने क्या हुआ, अपराध कर दिया गुरु के प्रति, तो उनको सुअर का शरीर मिला। अब देखिए जो मनुष्य है, इंसान है ना, जो जीवात्मा है वो किसी भी परिस्थिति में ना एंजॉय करने को सोचता है। ये नहीं देखते कि मुझे थोड़ा मैं बाहर निकल जाऊं। तो जब सुअर बने, धरती लोक पे आ गए इंद्र। अब इंद्र लोक में तो बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत कुछ है, मगर वहां तो अब क्या हुआ, यहाँ आगे सुअर बन गए। तो अपनी सुअर पत्नी होगी, सुअर बच्चे भी हो गए। तो मल मूत्र में इधर घूम रहे, विचरण कर रहे हैं। तो नारद जी आते हैं, कहते हैं कि इंद्रदेव, आपका इतना बड़ा इंद्रलोक है, खाली पड़ा है, आ जाओ, ये छोड़ो यहाँ की मुंह माया, आप उधर को चलो। कहते नहीं 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 नहीं, ये मेरी ये सुअरनी का क्या होगा, तो ये मेरे सुअर बच्चों का क्या होगा। तो हमारा भी वही हाल है। जब कोई संत महात्मा हमारे पास आते हैं, कहते हैं हे जीवात्मा, बड़ा सफर कर रहे हो, माया की बड़ी लातें पड़ रही हैं, जाग जाओ, जीव जागो, घोर चंद्र बोले कि जीव जाओ, जागो, ये माया के प्रभाव में मत रहो, उसकी गोद में मत सो, लात घूसे खाने पड़ेंगे, दोबारा गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, तो बहुत तकलीफ होगी। तो आओ हरि नाम करते हैं, भगवत धाम जाते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, अरे मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा, अरे मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को। तो वी आर स्टिल ट्राइंग टू एंजॉय हियर। हम निकलना नहीं चाहते यहाँ से। हम एक साधारण सा तरीका बताया जाता है, हम नहीं निकलना चाहते। जैसे एक कथा आती है, एक बार एक व्यक्ति था, वो किसी आइलैंड में फंस जाता है। बेचारा नौका से जा रहा होता है, तो नौका उसकी कहीं टूट टाट जाती है, तो बेचारा फंस जाता है वहां। तो अब उस आइलैंड में कुछ होता नहीं है। तो एक पत्थर था वहां पे, बहुत बड़ी सी रॉक, जिसको हम कहते हैं चट्टान टाइप की।
तो अब उसी वो बैठता था, वहीं पे अपना खाना पीना करना उसने, तो वहीं पे ऑलमोस्ट अपना समय उसी पत्थर पे बैठे-बैठे बिताता था। तो एक बार एक छोटी नौका वाला आया व्यक्ति, तो वहाँ से जा गुज़र रहा था, तो उसने इस व्यक्ति को देखा, तो इस व्यक्ति ने हाथ दिया, बचाओ, 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 तो बोला, "आ जाओ नौका में बैठो, तो तुम्हें पार दूसरी ओर ले जाता हूँ, जहाँ पे सारे लोग रहते हैं, सब कुछ है, खाना-पीना बहुत अच्छी व्यवस्था है।" तो बोला, "ठीक है, चलते हैं।" तो व्यक्ति कहता है, "मैं चलूँगा, मगर ये जो मेरी रोक है ना, मेरी चट्टान, इसको भी साथ में लेके जाना।" तो व्यक्ति बोले, "भाई, ये नौका छोटी-सी, तेरी चट्टान इतनी बड़ी, डूब जाएँगे दोनों, क्या फ़ायदा? तुझे चलना है तो चल, साथ में पत्थर से क्या मोह?" कहता, "नहीं, नहीं, ये जाएगी साथ में तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा।" बोले, "बैठा रहे फिर।" तो बैठा रहेगा तो क्या होगा? कुछ समय बाद खुद ही मर जाएगा वो। हमारी हालत भी ऐसी है। हमने भी कई चट्टानें पाल रखी हैं, बाँध के रखी हैं अपने साथ में। और ये भी एक उदाहरण दी जाती है कि जैसे संत महात्मा आते हैं, जैसे मछली कई बारी क्या होता है समुद्र के प्रभाव से बाहर गिर जाती है। तो क्या होती है अब कई बार लोग प्रयास करते हैं कि मछली को पकड़ के पानी में डाला जाए, तो मछली को पकड़ हाथ से फिसलती है वो, हाथ में नहीं टिकती। अगर आप लोगों ने कभी मछली पकड़ी हो, मैंने पकड़ी है। हम लोग जब गोवा में थे, तो वहाँ पे समुद्र के किनारे बहुत मछलियाँ पकड़ी हम लोगों ने। मतलब खाने के लिए नहीं ऐसे ही सॉरी। तो हाँ, मैंने खाई भी है वैसे बट नाउ आई एम वेजिटेरियन। बचपन की बात अलग है। तो तब वो क्या हुआ मछली को पकड़ते हाथ में फिसल जाती है। तो वो उसको डर लगता है कि पता नहीं क्या कर जाएगा मेरे साथ। ये नहीं देखते कि ये मेरे को पानी में ही डाल रहा है तो हम भी ऐसे ही हैं। हम एक साधु के शरण में नहीं जाते, हमें लगेगा हमारी इंद्र तृप्ति रुक जाएगी। ये तो हमारा सारा खाना-पीना बंद करा देगा। पता नहीं क्या-क्या ले जाएगा हमारा तो हमारा जीना हराम कर देगा बट नहीं, एक साधु हमारे को सुधारता है, हमें आगे का रास्ता दिखाता है। तो हम बेवकूफ़ हैं, कि उनके हाथों से फिसल के भाग जाते हैं। हमारे लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, हम बोलते हैं ना आपकी मदद नहीं चाहिए, हम खुद ही कर जी लेंगे। तो जी के तो मछली जैसे मछली को आप बिन पानी के रखो, उसको सोना-चांदी दो, वो जिएगी क्या? मर जाएगी बेचारी कुछ समय बाद। तो वही हालत हमारी भी हो जाती है। बिन साधु के जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। वो एक पानी बिना मछली के समान है। तो इस प्रकार इवन अ हॉग डज़ नॉट विश टू पार्ट हिज अदरली पोज़ेशन इन एक्सचेंज फॉर हेवनली किंगडम। एक सूअर भी Hallelujah. अपने ये जो भौतिक जगत का सुख है, ये इंद्र लोक के लिए छोड़ना नहीं चाहता। ही वाज़ द तू रिलिजियस बाहर चल प्रोटेक्टर जा ऑफ द चल। नेचर प्लैनेट। तो ये अवस्था हम सबकी है ऐसी। क्या है, हमें भी बोला जाता है कि यहाँ से निकलो बड़ा सुख है, भौतिक आध्यात्मिक जगत में, वहाँ पे एन्जॉय करोगे, भगवान का धाम चिंतामणि धाम है। चिंतामणि प्रकरासदम शुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रकृत संभ्रम सेवमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कि भगवान का धाम चिंतामणि धाम है, विश फुलफिलिंग ट्रीज हैं, सुरभि काव है, लक्ष्य सहस्र लक्ष्मी है, इतना सब कुछ है, आनंद है, वहां नहीं आना चाहते हैं लोग। नहीं नहीं, भौतिक जगत बहुत प्यारा है। प्रभा भगवान श्याम सुंदर रूप में वेणुं सुवंतम अरविंद सलायताक्षम प्रभात्मसम्मथितं सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकं कमनीय विशेष शोभा गोविंदमादिपुरुषं अहं भजामि। भगवान स्वयं श्याम सुंदर रूप में, बट फिर भी हम नहीं जाना चाहते, यही सड़ना चाहते हैं हम। लोग में भौतिक शरीर देखेंगे, फिर बेचारे बीमार पड़ जाएंगे, अरे कितना गंदा दिख रहा है, छी। भाई लोगों की सुंदरता इतनी दिखती है, भगवान श्याम सुंदर की सुंदरता आए दिन बढ़ती है। तो अगर आंखों को शांति देना चाहते हो, जीवन सही से जीना चाहते हो, तो साधु गुरु और इस समय में स्पेशली ये जो समय बहुत बुरा चल रहा है, तो प्लीज भक्ति भजन सीरियसली कीजिए और आगे प्रगति करने का प्रयास करें। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ रियलाइजेशन हो तो प्लीज गो अहेड। रियलाइजेशन तो आई थिंक आई वॉन्ट एबल टू टेक अप राइट नाउ। सो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज गो अहेड इमीडिएटली बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। सो आप लोग बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? प्लीज गो अहेड। नो डाउट्स अक्षय। ओके, और किसी का? सारे बड़े ज्ञानियों की सभा है यहाँ पे, परमहंस वैष्णव हैं जिनको पूरा ज्ञान है, एक मैं ही मूर्ख व्यक्ति हूँ, तो मेरे को बहुत प्रश्न है। तो मुझे लगता है आई थिंक नोबडी वांट टू स्पीक एनीथिंग। इट्स ऑल राइट। सब महान आत्मा है तो प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं थोड़ी भक्ति में वृद्धि करूँ और थोड़ा अच्छे से चीजों को समझ पाऊँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत कम है।
यस आरती माता जी, हरे कृष्णा। एक जीवात्मा जाग गई। बोलिए, कुछ कहना है आपको आरती माता जी? कुछ नहीं कहना है? सभी यहाँ पे परमहंस हैं, सबको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है कि मेरे जीवा है। तो परमहंस आत्माओं, प्लीज मेरे लिए भी प्रे कीजिए कि मैं भी थोड़ा समझ पाऊँ चीजों को और अच्छे से भक्ति कर सकूं, so that I can get serious. So because you people don't say anything, so I don't think you are people having any realization here. लगता है मेरा ही दिमाग खराब है, मेरे मेरे को ही बड़ा कुछ आ रहा है दिमाग में, आप लोगों को कुछ नहीं आता, या वही ज्यादा रियलाइजेशन है, तो या मेरी अप्रोच वैसी नहीं है कि आप कमल के समान और मैं सूर्य के समान उस तरह प्रस्तुत नहीं हो पा रहे कि आप अपने हृदय खोल के मुझे कुछ बता पाए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं कहना चाहते तो ठीक है, क्या करें, फोर्स नहीं ना कर सकते। आप नहीं ज्ञान देना चाहते तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं और हम्बल अप्रोच कर सकूं, आप थोड़ा मुझे समझा सकें। चलिए विल स्टॉप हियर देन, लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भी कंजूसी करते हैं आप लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी नाम नहीं ना लोगे तो जूते खाओगे यमराज के, तो नाम लिया करो जोर से। श्रील ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपात की जय, और जय सबकी की जय। थैंक यू सो जय। मच। सी यू ऑल इन द इवनिंग भगवत गीता क्लास। रामायण उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे शाम को ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।